अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोग ने ज्वाइन कर लिया है? यस मैम। ओके, प्लीज बी अटेंटिव। एज यू नो ऑलरेडी के आप लोगों का इन्फ्लेमेशन का चैप्टर अभी कंटिन्यू है एंड यू हैव ऑलरेडी डन chronic acute inflammation in details. So today we are going to do the chronic inflammation. First of all, let's just review. We will see what is inflammation. Inflammation is the reaction of blood vessels leading to the accumulation of fluids and leukocytes in extravascular tissue. Okay, what's the role of tissue and cells in inflammation? So many tissues and cells, they are involved in inflammation. So the tissue and fluid, they are fluid and proteins of plasma, blood vessels, as I have already told you, they are also involved. There is also cellular and extracellular constituents of the connective tissue. कौन-कौन से होते हैं उसमें? There are mast cells and fibroblasts. And the circulating cells कौन-कौन से inflammation में? Acute inflammation में कौन-कौन से circulating cells होते हैं? Can you tell me? Writing. इधर भी रिस्पॉन्स इसको नाम बता सकते हैं यार। अच्छा चले रहने दो। ओके बच्चों, बताओ कि आपके कौन-कौन से एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन-कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? मैम न्यूट्रोफिल्स। हाँ, मेन न्यूट्रोफिल्स होते हैं और इसके अलावा और कौन-कौन से सेल्स होते हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। ठीक है। ओके, तो सर्कुलेटिंग सेल्स एज अ होल मैं आपको बता रही हूँ, इसमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, eosinophils, lymphocytes, basophils and platelets, these are all involved circulating cells होते हैं. So next is what are the sign and symptoms of inflammation? Sign and symptoms of inflammation as a whole जो होती हैं, इसमें there is fever. Fever क्यों होता है? Can you tell me? What's the reason of fever in inflammation? Okay, number one, there is mediators release. हाँ, mediators release होते हैं, interleukin 1 और tumor necrosis factor. हाँ ठीक है, बिल्कुल गुड. तो ये क्या है सारे? These will cause a increased body temperature या जिसको हम फीवर कहते हैं, कि आपको at least these are the sign and symptoms of inflammation. If there is no sign and symptom of inflammation, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल चल रहा है? ठीक है, किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है, तो ये व्हाट इज इन्फ्लेमेशन या क्या है? बेसिकली दिस इज द आपका एक बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी या कहीं पे आपको इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है. सेकंड इज पेन. पेन कहाँ पे हो सकती है? लोकल एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है. एंड देयर कैन बी टिश्यू डैमेज. टिश्यू डैमेज के साथ साथ देयर कैन बी स्वेलिंग ऑफ टिश्यू. ठीक है. Of course there is swelling, so there can be further lead to the tissue damage and there can be redness of the tissue and there can be redness है, loss of movements or restricted movements. ठीक है. There can be total loss of movement or restricted movements if it is near the joints. ठीक है. आपको एग्जांपल मुझे बता सकते हैं जिसमें
आपके जॉइंट्स की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो आपकी बॉडी में किसी जगह पे नियर टू द जॉइंट्स। आर्थराइटिस जी बिल्कुल ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, इसमें जॉइंट्स के नजदीक आपकी इन्फ्लेमेशन होती है, दैट विल रिस्ट्रिक्ट टू द आपकी जो नॉर्मल मूवमेंट्स को है रिस्ट्रिक्टेड कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट एज अ होल जो हम थोड़ा सा इसका रिव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट देयर इज types of inflammation. As we already know, there are basically two types of inflammation. Number one is acute inflammation and second is chronic inflammation. Okay, in acute inflammation, it occurs over seconds, minutes or and days. ठीक है, जबकि chronic का क्या है, acute means कि इसके meaning से पता चल रहा है कि it limits for it is for seconds, minutes, hours and days तक भी हो सकती है, while in chronic inflammation what will be which occurs over longer times, days and even it can lead to the for many months तक भी जा सकती है। Okay, now come to our topic, chronic inflammation का आज आप डिटेल में करेंगे। तो what is the definition of chronic inflammation? ठीक है, आप सबको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इन वाइवा क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, ओके टेल मी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ chronic inflammation, and they can also ask you कि आपके what is the difference, can you tell me the differences between acute and chronic inflammation, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेशंस और प्लस डिफरेंसेस पता करने होने चाहिए, ठीक है। आपको कल वाले लेक्चर में आपको डिफरेंसेस भी कराऊंगी। ओके, chronic inflammation, it's a response of prolonged duration, that is weeks or months, in which inflammation, tissue injury and attempts at repair coexist in varying combinations. Okay, chronic inflammation, it may occur by one of the following three ways, ठीक है। इसमें three possibilities हैं कि chronic inflammation किस तरह हो सकती है। Number one, there can be chronic inflammation following acute inflammation. आप इससे क्या understand करते हो, chronic inflammation following acute inflammation? Any student please? मतलब पहले acute inflammation होगी, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपकी चल रही थी, ठीक है, वही जो है आपके जितने भी बैक्टीरिया या जो भी इन्फेक्शन था वो टोटली उसको रेडिकेट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या है, फर्दर इट विल चेंज इनटू द या इट विल लीड टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन इज एक्सटेंसिव और द बैक्टीरिया सर्वाइव एंड परसिस्ट इन स्मॉल नंबर्स, ठीक है, एट द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो क्या है, दे विल लीड टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फिर उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स में आता है ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड निमोनिया टर्मिनेटिंग इन लंग एब्सेस, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई थी, निमोनिया हुआ था, ठीक है, बट जो है उसमें आगे जो जाके है वो लंग एब्सेस में चेंज हो गया। ओके, सेकेंड वे क्या हो सकता है, देयर कैन बी रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जब आपको acute inflammation के ही recurrent attacks हो रहे हैं, ठीक है, when repeated bouts of acute inflammation they culminate in chronicity of the process, for example in recurrent UTI, ठीक है। UTI का क्या मीनिंग है, इसका एब्रीवेशन है urinary tract infection, ठीक है। urinary tract infection आपको recurrent बार बार हो रहा है, then it will lead to the chronic pyelonephritis, it means के जो infection है वो वहां तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट विल ये ऊपर की तरफ असेंड कर जाएगा एंड देन इट विल कॉज द पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो क्या है ये, इट विल बी कन्वर्टिंग टू द chronic inflammation, and second can be repeated acute infection of gallbladder leading to the chronic polycystitis, ठीक है। acute infection हुआ, बार बार हो रहा है, ठीक है, गॉल ब्लैडर का, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द chronic polycystitis, ठीक है। तो ये आपने देखिए, इसमें फर्स्ट जो है फिर आपको एक दफा फिर बता देती हूँ, इसमें chronic inflammation it can occur by one of the three following ways, ठीक है। इसमें से कोई भी एक हो सकता है, ये थ्री पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका नंबर वन इज chronic inflammation following acute inflammation, and second is recurrent attacks of acute inflammation, and the third is
chronic inflammation starting de novo. What's the meaning of de novo? मतलब आपकी बिगनिंग या एक न्यू, बेसिकली इसका मतलब होता है कि बिगनिंग से, स्टार्ट से, या एक न्यू चीज हो रही है, ठीक है. व्हेन द इन्फेक्शन विद ऑर्गेनिजम्स ऑफ लो पैथोजेनिसिटी इज क्रोनिक फ्रॉम द बिगनिंग. फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. अच्छा, ओके. अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. आप लोगों ने इसी तरह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कॉजेज भी पढ़ी होंगी. इसमें टेबल बना हुआ है आपकी बुक में कि क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं दैट कैन कॉज एक्यूट इन्फ्लेमेशन. इसी तरह से देयर आर सम कॉजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. इसमें नंबर 1 पे देयर इज मोस्ट कॉमन जो है, देयर कैन बी परसिस्टेंट इन्फेक्शन. If there is a infection is persistent, acute infection हुआ, ठीक है, बार बार उसके episode, but the organisms are there, then it will lead to the chronic inflammation. Number 1 is persistent infection. Second, it can be hypersensitivity diseases, and third can be prolonged exposure to potentially toxic agents. अच्छा, अब हम इनकी डिटेल्स करेंगे. इसमें नंबर 1, if there is persistent infection. Persistent infection में क्या है? By microorganisms that are difficult to eradicate, such as mycobacteria and certain viruses, fungi and parasites. ठीक है, mycobacteria के बारे में क्या है कि वो totally जो है eradicate नहीं होता आपकी, ठीक है, बॉडी से. It can affect the other organisms को भी affect कर सकता है, ठीक है. तो ये भी, this is also an example of chronic inflammation. It means कि if the organism is there, and then it will lead to the persistent infection and chronic inflammation. Okay, second, these organisms often evoke an immune reaction called delay type hypersensitivity. The inflammatory response sometimes takes a specific pattern called a granulomatous reaction. ठीक है, इसमें हम आगे देखेंगे granulomatous inflammation का भी हम करेंगे उसको डिटेल में, और उसमें देखेंगे granulomatous inflammation में कौन कौन सी आती हैं चीजें, ठीक है. एनी कॉमन एग्जांपल जो आप लोगों ने इससे पहले भी की हो या माइक्रो में की हो, कोई दे सकते हैं आप? ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन किस में होती है? एनी एग्जांपल? उसकी डायग्राम भी है, माइक्रो में भी आपने किया है, काफी कॉमन ऑर्गेनिज्म है. एनी स्टूडेंट? आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसमें होती है ना ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, होती है या नहीं? लंग्स में मैम. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पढ़ा है आपने? ग्रैनुलोमेटस, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन और ये वो माइक्रो में पढ़ा है आपने? ओके, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट, देयर इज सेकंड इज hypersensitivity disease. Chronic inflammation, it plays an important role in a group of diseases that are caused by excessive and inappropriate activation of the immune system. In these diseases, hypersensitivity में क्या है? In these diseases, autoantigens, they evoke a self-perpetuating immune reaction that results in chronic tissue damage and inflammation. अब इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सी आती हैं? There are two examples. First is rheumatoid arthritis and second is multiple sclerosis. Okay, third is if there is prolonged exposure to potentially toxic agents. These potentially toxic agents, they can be exogenous or endogenous. What's the meaning of exogenous? Can you tell me? Outside foreign particles outside से जितने भी आपके particles या कोई भी इस तरह का आपकी किसी चीज के साथ exposure है. और endogenous means कि जो already आपकी body के अंदर है. So an example of an exogenous agent is particulate silica, a non-degradable inanimate material that when inhaled for prolonged periods. ठीक है, आप अगर थोड़ा बहुत inhale कर लेते हो, ठीक है, कभी कभार या कभी once or twice, तो नहीं, when inhaled, ये जो जितने भी हैं, when they are inhaled for prolonged periods, then it will result in an inflammatory lung disease called silicosis. Okay,
सेकेंड एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकती है, दिस इज ये था आपका एक्सोजिनस के, ठीक है। हेडिंग थी इसमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स, ठीक है। दिस एजेंट शुड बी टॉक्सिक एंड व्हेन यू हैव अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू दिस थिंग्स then it will disease lead to these diseases like this was a exogenous, ठीक है। exogenous की example अगर आपसे पूछी जाती है, it is silicosis. Okay, second is this is basically endogenous, it means it is producing everything in your body. So इसकी best example is atherosclerosis. So it is thought to be a chronic inflammatory process of the arterial wall induced at least in part by excessive production of and the tissue deposition of endogenous cholesterol and other lipids, ठीक है। It means कि आपके endogenous में क्या है, जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल्स और अदर लिपिड्स हैं, दे विल लीड टू द व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इनकी एक्यूमुलेशन और आपके लेवल्स जब हाई होंगे तो क्या करेगा, इट विल लीड टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, इसमें आपको क्या कुछ एबनॉर्मल नजर आ रहा है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। एक तरफ नॉर्मल ब्रोंकाई है, दूसरी तरफ ब्रोंकाइटिस है। इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? ल्यूमेन जी, ये ल्यूमिन आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको येलो कलर की जो है कोलेस्ट्रॉल और इनकी डेपोजिशन जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। तो इट विल लीड टू द, क्या करेगा ये, ऐसा ऐसा इसके ल्यूमिन को नैरो करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये है, दैट विल बी अ डिफरेंट नॉर्मल ब्रोंकाई और ब्रोंकाइटिस जो है उसमें आपको बड़ा क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये क्या है, आप इसको दे सकते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एग्जांपल में। ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की है। इस स्लाइड में देयर इज अ टिश्यू डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाज, तो ये शायद आप उनको भी समझ ना आए। Okay, this is also an example of chronic bronchitis. Same as you can see, this is a normal, ठीक है। आपके लंग से जूम करके पिक्चर ली गई, इसमें this is a normal and there is a deposition of cholesterol and lipids in the other room. Okay, and this is a, क्या है इसमें, inflamed primary and secondary bronchi, ठीक है। ये जो लाइंस हैं इसमें you can see there is inflamed primary and secondary bronchi. And chronic bronchitis is caused most often by exposure to the airborne pollutants, okay, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है that is cigarette smoking. This is exogenous or endogenous? Exogenous. जी, exogenous जी, ठीक है। This is also an example of chronic inflammation. इसमें you can see, अच्छा ये जो है इसकी डिटेल पिक्चर की जो है ये है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, ठीक है। शोइंग ऑल 3 कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। इन दिस नंबर 1 देयर विल बी कलेक्शन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं आपको, तो ये जो है ब्लू वाले, ठीक है, सेल्स में इतनी क्लियर नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ये सारे जो है आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सेल्स हैं। सेकंड, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरेन्काइमा. Destruction of parenchyma, there is normal alveoli, they are replaced by the spaces line cuboidal epithelium. And third number पे there can be replacement by connective tissue. Connective tissue की replacement that is called fibrosis. This is a picture of chronic gastritis, chronic inflammation, ठीक है। अच्छा, ठीक है, this is very important, ठीक है। आप इसमें दे सकते हो, क्या है इसमें कुछ abnormal नजर आ रहा है? Joint swelling. जी, जॉइंट्स की स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है। इट्स अ पिक्चर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के हैंड की पिक्चर है, ठीक है। ये इसके एक्स-रे की पिक्चर है, इसमें भी आपको जॉइंट्स की जो है इन्फ्लेमेशन नजर आ रही है। अच्छा, जस्ट जो है मैंने पीछे वाली दिखाई है आपको, जस्ट एग्जांपल्स हैं, उनकी पिक्चर दिखाई है। अब हमने नेक्स्ट जो इसमें करना है, व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या है, देयर आर 3 थिंग्स in morphological pictures. Number 1, there will be infiltration with mononuclear cells, ठीक है। अब आपको मुझे बताएंगे मोनोन्यूक्लियर सेल्स कौन कौन से होते हैं, उसमें कौन कौन से होंगे इन्वॉल्व?
मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स। हाँ जी, ये लिखे भी हुए हैं इसमें आपकी इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स। मोनोन्यूक्लियर सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? देयर विल बी मैक्रोफेजेस। अच्छा, मैक्रोफेजेस कहाँ से आते हैं? मैम मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स ही आते हैं। These are basically monocytes. मोनोसाइट्स बनते कहाँ पे हैं? आपके बोन मैरो में बन रहे होते हैं, ठीक है, स्टेम सेल से बनते हैं। और फिर उसके बाद आगे आएगी इसमें डायग्राम, जिसमें आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा कि व्हाट इज द इमेच्योर से मैच्योर की तरफ किस तरह आते हैं एंड हाउ दे बिकम मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो इन मोनो देयर विल बी इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स। व्हाट आर द मोनोन्यूक्लियर? कौन कौन से होंगे? मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। Second, there will be tissue destruction. Tissue destruction, it is induced by the persistence of offending agent or by the inflammatory cell. It means के tissue destruction आपके normally तो नहीं होती जब तक कि कोई induce करने का कोई factors present नहीं होगा, कोई भी offending agent या कोई inflammatory cell. There will be normally there will be no tissue destruction. But we are talking about the tissue destruction in chronic inflammation. Third, there will be attempts at repair, ठीक है, by connective tissue replacement of damaged tissue accomplished by angiogenesis. Angiogenesis, what is angiogenesis? Formation of new blood vessels. जी, formation of new blood vessels. All the blood vessels, सारी blood vessels angiogenesis हो सकती है सारी blood vessels क्लेम तो होंगी जी मैम। डैमेज्ड ब्लड वेसल्स की नहीं, कौन से साइज की होंगी जो होंगी इसमें न्यू वेसल्स फॉर्मेशन होगी? बड़े बड़े भी एंजियोजेनेसिस मींस के न्यू, इसका मतलब मीनिंग होता है एंजियोजेनेसिस मीन न्यू वेसल्स फॉर्मेशन बट नॉट ऑल द वेसल्स, ठीक है। इसमें जस्ट स्मॉल ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी। ओके, रिमेंबर एंजियोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, ठीक है। So there will be attempts at repair by connective tissue replacement of damaged tissue accomplished by angiogenesis, ठीक है। There will be in angiogenesis there will be formation of new blood, small blood vessels and in particular fibrosis. Okay, when acute phase can't be resolved, there is persistent injury or infection like ulcer, tuberculosis and prolonged toxic agent exposure, and there will be autoimmune disease states, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें से 3 करनी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है जस्ट। अच्छा, ओके, नेक्स्ट इज इन्फिल्ट्रेशन बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ठीक है। अब हम इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ठीक है, होती है बट द न्यूक्लियर मोनोन्यूक्लियर सेल्स दे आर become predominant after 48 hours के बाद, ठीक है। they will become predominant after 48 hours. And these include macrophages, lymphocyte, plasma cells, eosinophils, and mast cells. Okay, tell me what is the key player in chronic inflammation? ठीक है, आपने मुझे बताया था कि acute inflammation में कौन सा मेजर होता है? न्यूट्रोफिल्स एंड हाँ, ठीक है। अब इसमें अब हम बात कर रहे हैं chronic inflammation की, ठीक है। acute में न्यूट्रोफिल्स आ रहे हैं, ठीक है, मेजर। अब chronic inflammation में व्हाट इज द की प्लेयर जो सारा ये प्ले कर रहा होता है अपना रोल, मेन रोल प्ले कर रहा होता है? व्हिच सेल? मैक्रोफेजेस, यस, गुड, ठीक है। आपसे अगर वाइवा में भी पूछा जाता है तो आपको एक्यूट और क्रॉनिक का एटलीस्ट मेजर जो है सेल जो कि की प्लेयर एज अ की प्लेयर काम करेगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ मैक्रोफेज, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में क्या है? लाइसोसोम नजर आ रहे हैं आपको, और इसके अलावा इसमें शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो इसकी पिक्चर, ठीक है। इसमें फैगोसिटिक वैक्यूल्स होते हैं और उसके अलावा कुछ साइटोकाइंस रिलीज करेंगे और डिफरेंट आगे जाएंगे, थोड़ी सी डिटेल, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट इज डज मैक्रोफेज डायरेक्टली कम्स टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? डज मैक्रोफेज डायरेक्टली कम टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? नो, ये डायरेक्टली नहीं आएंगे, पहले मोनोसाइट्स आएंगे, पहले मोनोसाइट आएगा, मैच्योर होगा, ठीक है। डायरेक्टली ये नहीं है कि आपके वो एकदम से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तो ही वहां पे आ जाएंगे, जब जरूरत होगी तब वो चेंज होके इसमें अपना रोल प्ले करेंगे,
ठीक है, ये मैं आप ऑलरेडी आपको बता रही थी, मेच्योरेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट्स। ठीक है, ये है इसकी पिक्चर मैक्रोफेज की। ठीक है, इसमें आप सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टेम सेल्स। ठीक है, बोन मैरो में देयर आर, बोन मैरो में क्या है, स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स दे विल पर्सन नजर आ रहा है आपको? ओके, दिस इज अ बोन मैरो। ठीक है, सपोज दिस इज अ बोन मैरो। ठीक है, इन बोन मैरो देयर आर सम स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स में दे विल फॉर्म द मोनोब्लास्ट। ठीक है, दिस इज द अर्ली monoblast, and then monoblast it will be in bone marrow. ठीक है, when it will come into the blood, blood में बनके क्या हो जाएगा, it will हम इसको कहेंगे दिस इज अ मोनोसाइट। ठीक है, ये मेच्योर होके ब्लड में आ जाएगा, दिस इज अ मोनोसाइट। एंड थर्ड नंबर पे when it comes into the tissues, when monocyte सर्कुलेटिंग जो होता है आपके ब्लड में, ये मोनोसाइट फॉर्म में होता है। ठीक है, और उससे पहले ये मोनोब्लास्ट की फॉर्म होता है, बट इट इज इन बोन मैरो। तो व्हेन इट विल बी इन टिश्यूज देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, इसको मैक्रोफेज। ठीक है, व्हेन मोनोसाइट कम्स इनटू द टिश्यूज देन इट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। ठीक है, और ये मैक्रोफेजेस डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट नेम से होंगे, बट दे आर बेसिकली मैक्रोफेजेस। ठीक है, इन सीएनएस दे आर कॉल्ड माइक्रोग्लिया, and in liver they are called Kupffer cells, and in lungs में they will be called as alveolar macrophages। ठीक है, and in bones they are called osteoclasts। ठीक है, ये चारों के आपने नाम याद करनी है कि कौन कौन से टिश्यूज में मैक्रोफेजेस होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर। अच्छा, उसमें मैक्रोफेजेस जो हैं दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन, जो उन्होंने काम करना है, दे विल परफॉर्म व्हेन दे आर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ठीक है, वो हम आगे थोड़ी सी और डिटेल में करेंगे। ओके, मैक्रोफेजेस के नॉर्मली यू शुड नो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स सिक्रेटेड बाय द मैक्रोफेजेस। तो आपको थोड़े से इनके ये नाम याद कर लेना। ठीक है, इसमें साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरफेरॉन्स गैमा, और देन कैन बी ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं आपके, ठीक है, ये भी आपके मैक्रोफेजेस से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट देयर आर 4, इसमें टीजीएफ ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, पीडीजीएफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, एंड एफजीएफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंड ईजीएफ इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स दैट आर रिलीज बाय द मैक्रोफेजेस। ओके, अच्छा, अब आपको साइटोकाइंस का पता होना चाहिए। नंबर 1 पे हमने देखे कि साइटोकाइंस which are released by the macrophage, interleukin 1 and interleukin 2 simply। ठीक है, next there are interferon gamma and growth factors। ठीक है, there are 4 growth factors that are released by the macrophages, TGF, PDGF, EGF and FGF। ठीक है, अच्छा, इसमें है TGF and platelet derived growth factor, they are to stimulate the fibroblast basically। and इसके अलावा there is also complement factor T and enzymes कौन कौन से होंगे, प्रोटीएसिस, एंडोन्यूक्लियसिस एंड इलास्टेसिस। ये बच्चों आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, अच्छा, देयर इज अ प्रोडक्ट्स रिलीज बाय मैक्रोफेजेस, ये भी सेम है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा ये डिटेल में, बट आप लोग आई थिंक ये ठीक कर लो बस, इधर से ये वाली का कोई वाली चीज। साइटोकाइंस कौन से थे, इंटरल्यूकिन 1, TNF, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, और इसके अलावा रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, नेक्स्ट इज द रोल्स ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, व्हाट्स द रोल ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ठीक है, नॉट अबाउट सिंपल मैक्रोफेजेस। व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, तो इसका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या ये रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो उसमें पहले मैंने आपको करवाए हैं कि इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो आप लोगों ने सारे याद करने हैं। सेकंड, इसमें रोल क्या है, there are 2 major roles that are performed by the macrophages in chronic inflammation. Number 1, there is inflammatory tissue injury, and it means inflammatory tissue injury, and second, it is will cause the repair
रिपेयरिंग थ्रू द ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्फ्लेमेटरी टिश्यू इंजरी भी कर रहा है और साथ में रिपेयर भी कर रहा है। इसकी डिटेल जो है हम आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज अ अच्छा, इसमें आपको शो हो रहा होगा, कैन यू सी माय कर्सर? अच्छा, इसमें जो है इन सर्कुलेशन में एज यू कैन सी दिस इज अ मोनोसाइट। सर्कुलेशन में जो है मैक्रोफेज मोनोसाइट फॉर्म में होगा, देन इट, फिर उसके बाद ये बाहर आया, ठीक है, एंड देन इट व्हेन इट कम्स इनटू द टिश्यू दिस बिकम्स अ टिश्यू मैक्रोफेज, ठीक है। दिस इज अ टिश्यू मैक्रोफेज। अच्छा, इसमें क्या है, इसकी एक्टिवेशन के लिए क्या क्या चीजें होंगी, व्हेन इट विल बी एक्टिवेटेड या इट विल स्टार्ट टू परफॉर्म इट्स फंक्शनिंग। तो इसमें क्या है, देयर कम्स अ इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड टी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी विल आल्सो डू द के मैक्रोफेज की इंटरेक्शन विद द ल्यूकोसाइट्स के साथ किस तरह होती है। नंबर 1 पे देयर इज इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेटेड बाय एक्टिवेटेड टी सेल एंड इट विल रिलीज एक्टिवेटेड टी सेल। बेसिकली क्या रिलीज करेगा, ठीक है, इट विल एक्टिवेट बट देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू थिंग्स, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1 में जो है माइक्रोब्स, ठीक है, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की कौन सी चीजें, माइक्रोब्स के जो एंडोटॉक्सिन होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज इंटरफेरॉन साइटोकाइन इंटरफेरॉन गैमा। अच्छा, और उधर से इंटरल्यूकिन 4 एंड अदर साइटोकाइंस आएंगे, ठीक है, दे विल एक्टिवेट इसको एक्टिवेटेड। ये दिस वाज अ सिंपल जो आपको ऊपर नजर आ रहा है मैक्रोफेज, दिस इज सिंपल। तो ये वाली चीजें आई हैं, इन्होंने दे हैव एक्टिवेटेड द मैक्रोफेजेस, ठीक है, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस फॉर्म में कर दिया है। इसमें क्या करेगा, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस दे विल डू टू थिंग्स रिमेंबर, ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन और टिश्यू इंजरी करेंगे, प्लस जो सेकंड होगा वो रिपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आपके और डिटेल में आगे करते हैं। ओके, ये जो है नेक्स्ट देयर इज एक्टिवेटेड, इसमें थोड़ा सा दिखाया गया एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी सेल्स किस तरह होती हैं, साइटोकाइंस, ठीक है, आएंगे। दे विल एक्टिवेटेड, देयर विल बी एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, ठीक है। एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो है देन इट विल फर्दर प्रोड्यूस द ट्यूमर नेक्रोजिंग फैक्टर एंड इंटरल्यूकिन फैक्टर, ठीक है, और इस फॉर्म में इन्फ्लेमेशन करेगा और इसी तरह से दूसरा है। एंड उसमें क्या है, देयर विल बी ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर्स, इंटरल्यूकिन 17, कीमोकाइंस, ठीक है। इसमें एक्टिवेटेड टी सेल्स जब आएंगे तो ये फर्दर इधर से आ रहा है आपका एक्टिवेटेड मैक्रोफेज आ रहा है और उधर से आपका एक्टिवेटेड टी सेल्स अपने साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं। देन देयर विल बी, दोनों मिलेंगे तो देन देयर विल बी रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगी, इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन देयर विल बी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो इन दोनों का रिक्रूटमेंट के बाद देन देयर विल बी स्टार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा, इसमें हाउ विल बी द क्रॉनिक इंजरी, क्रॉनिक इंजरी में क्या है, इन क्रॉनिक इंजरी देयर इज क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और दूसरी तरफ ये कर रहे होंगे टिश्यू डिराइव्ड नाइट्रोजन और बैक्टीरियल एंड टिश्यू डिराइव्ड मोनोसाइट कीमोटैक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। फर्दर दे विल लीड टू द कीमोटैक्टिव फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, दोनों जो हैं, फिर ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं इसमें दे विल कॉज द प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस एंड chemotactic factors they will cause the recruitment of circulating macromonocytes, ठीक है। एंड जो है सबका एंड रिजल्ट देयर विल बी इंक्रीज मैक्रोफेज। अच्छा, ओके, आगे हम वी आर गोइंग टू डू द डिटेल्स ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है, दीज आर द डोमिनेंट सेल्स इन मोस्ट chronic inflammation. Professional phagocytes that act as, these are also called professional phagocytes that act as filters for particulate matters like microbes. Or their second functioning, they also function as the effector cell that eliminate microbes in cellular and humoral immune response, ठीक है। ये थोड़ी सी डिटेल है मैक्रोफेजेस के बारे में, ठीक है, जो उसमें ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है कि दे आर के डिफरेंट ऑर्गन्स में ये in circulation they will be in the form of monocytes. When they come to the tissues, ठीक है, then they are called macrophages. और यही वाले macrophages when they are present in different organs तो उनके different नाम होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें they are scattered all over the
ऑर्गन्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया किसमें था? आपके सीएनएस में था जी, सीएनएस में। व्हेन मैक्रोफेज इज इन सीएनएस देन इट इज कॉल्ड माइक्रोग्लाया। एंड कुपर सेल्स, ये साइनस, इसी तरह से साइनस हिस्टोसाइट्स एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट जो फंक्शन है इसके? सर्कुलेट एज मोनोसाइट्स एंड रीच साइट ऑफ इंजरी within 24 to 48 hours and transform, ठीक है। They are normally circulating in the blood in the form of monocytes, ठीक है। अच्छा, साइट ऑफ इंजरी पे जो है दे विल नॉट, फौरन नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, within 24 to 48 hours, ठीक है। Then they will be transformed into the macrophages and they will perform their functions. So they become activated. अब इनकी एक्टिवेशन के लिए वन इम्पोर्टेंट जो चीज है दैट इज टी सेल डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड साइटोकाइंस, एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है। एंडोटॉक्सिन्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके सारे माइक्रोब से, ठीक है। तो उसमें एक्टिवेशन के लिए रिमेंबर देयर आर टू थिंग्स। टी सेल डिराइव्ड, ठीक है, आपका टी लिम्फोसाइट जो है वो साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है, और माइक्रोब्स हैं जो भी आपके जर्म्स है, ठीक है, दे आर प्रोड्यूसिंग एंडोटॉक्सिन and other products of inflammation. They will all cause the activation of macrophages. There are two major pathways of macrophage activation, ठीक है। अच्छा बच्चों, this is very very important, ठीक है। ये आपकी इसकी डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है रॉबिस में, ठीक है। वहां आपको ये वाला जो है इसकी पाथवे ये ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग। वैसे नहीं कि सिर्फ रटा मार लिया आप। इसमें there are, this is about the activation of macrophages, ठीक है। this pathway are how to activate the macrophages, के एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो हैं वो अपना आगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या रोल प्ले करेंगे और किस तरह से अपना फंक्शन करेंगे। तो रिमेंबर देयर आर टू मेजर पाथवेज ऑफ मैक्रोफेज एक्टिवेशन। नंबर वन इट्स क्लासिकल पाथवे एंड द सेकंड इज ऑल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। ये आपकी डायग्राम आपकी बुक से ही ली गई है, ठीक है, रॉबिन्स में बनी हुई है। अच्छा, इसमें देखो कि नंबर वन पे क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, ठीक है, वी विल कॉल इट एज M1। दूसरी तरफ आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज, अच्छा इसमें मैक्रोफेजेस दे विल बी एक्टिवेटेड, बट इन नंबर वन पे यू विल सी दिस इज क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, दिस इज कॉल्ड M1, ठीक है। और इस दूसरी तरफ आप देखोगे देयर इज ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, वी विल कॉल इट एज M2, ठीक है। अब हम सबसे पहले M1 की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इसको जो है क्लासिकली एक्टिवेटेड पाथवे जो है इट विल बी, कहाँ से ये इंड्यूस होगा, मतलब इसका स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। इसमें यू कैन सी देयर आर, हमने एग्जांपल्स दी हैं इसमें, देयर आर माइक्रोब्स एंड इंटरफेरॉन गामा। अब माइक्रोब्स जो हैं अपनी कौन सी चीज प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि ये इसको जाके एक्टिवेट करने की कोशिश करें। माइक्रोब्स के पास क्या चीज होती है? माइक्रोब्स में एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आए, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस किए, ठीक है, प्लस उसके अलावा इंटरफेरॉन गामा, ठीक है, दे बोथ they will induce the classically activated pathway को induce करेंगे, ठीक है। आप इसमें नजर आ रहा होगा दिस इज प्लस साइन, ठीक है। प्लस का मतलब है कि ये आपके इस तरफ जो है इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज को, ठीक है। सेकंड तरफ आप देखो तो इसमें आपको ये रेड कलर में नजर आ रहा है नेगेटिव का, ठीक है। इट मीन्स कि ये दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटिव मैक्रोफेज को नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दिस इज क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, ठीक है। एंड दिस क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज इट विल नेक्स्ट इट विल क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्टिवेटेड हो गया है, देन इट विल प्रोड्यूस ROS एंड NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। ये it will produce nitric oxide reactive oxygen species and plus it will also regulate the lysosomal enzyme, ठीक है। 3 चीजें ये कर रहा है। अब इन तीनों चीजों का इफेक्ट क्या है, there will be
साइडल एक्शंस, ठीक है, कि माइक्रोब्स को वो खत्म कर दें। इट में थ्रू फेगोसाइटोसिस एंड किलिंग ऑफ मैनी बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। अच्छा, यही एक्टिवेटेड यही and this activated macrophage on the other side it will produce interleukin 1, interleukin 2 and interleukin 23 and plus chemokines, ठीक है। It means this is producing these cytokines and chemokines. अच्छा, they will cause they will produce the inflammation, ठीक है। This is all about the classically activated macrophage M1. Okay, on the other hand, when we see the alternatively activated macrophage, that is M2, you will see that these microbes and interferon gamma, these have negative effects, ठीक है। तो अब इसको activated कौन सी चीजें करेंगी? It will be induced by interleukin. हो रहा है। अच्छा, सॉरी बच्चों, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। आपको मैंने क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज वाला पाथवे आ गया सबको समझ? यस मैम। अब मैं आपको सेकंड वाला बता देती हूँ, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है, इसको इंड्यूस करने के लिए कौन से फैक्टर्स आते हैं? देयर इज साइटोकाइंस आते हैं, देयर आर 2 साइटोकाइंस, ठीक है, इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 4। दे विल कम फ्रॉम द, कहाँ से आएंगे? टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। बाकी साइटोकाइन ऊपर भी आपको इंटरफेरॉन गैमा भी नजर आ रहा है, बट इट विल इसको इंड्यूस नहीं करेगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा, बट इट विल हैव सम इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह इंटरल्यूकिन 13 एंड इंटरल्यूकिन 4 दे विल आल्सो हैव सम इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, दैट इज M1, ठीक है, एंड बट इट विल इंड्यूस द M2। अब M2 आगे क्या प्रोड्यूस करेगा? दिस इज एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, ठीक है, एंड इट इज नेक्स्ट प्रोड्यूसिंग द ग्रोथ फैक्टर्स। रिमेंबर, इट विल प्रोड्यूस द ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड इंटर साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगा, प्लस इंटरल्यूकिन 10 एंड ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर सेकंड बीटा, ठीक है। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है, दे विल कॉज द टिश्यू रिपेयर एंड फाइब्रोसिस, ठीक है, और दूसरी तरफ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स आ रहे होंगे। अब इसमें टिश्यू रिपेयर किस तरह से कर रहा है? दीज ग्रोथ फैक्टर्स दे विल प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोजेनेसिस, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एंजियोजेनेसिस होगी, ठीक है, और इसके अलावा दे विल आल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, और कोलेजन को। इस तरह से ये तीनों चीजें जो है मिलके दे विल कॉज द टिश्यू रिपेयर और फाइब्रोसिस की तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 3 थिंग्स। नंबर 1, देयर विल बी angiogenesis. Second, they will produce the production of collagen or fibroblasts, ठीक है। तो ये इस तरह से टिश्यू रिपेयर में these growth factor they will play their role, and on the other side interleukin 10 and tumor growth factor beta they will cause the anti-inflammatory। अब समझ आ गई है कुछ इसमें ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो, या आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए प्लीज। इसमें से एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है, कि ग्रोथ फैक्टर्स क्लासिकली एक्टिवेटेड के कौन से होते हैं, या क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज का जो पाथवे है इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। एंड रिजल्ट इनका क्या होता है? माइक्रोबिसाइटल इफेक्ट होता है, मतलब फेगोसाइटोसिस और प्लस इन्फ्लेमेशन करेंगे, ठीक है। बट द ऑल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज का क्या होगा?
वो आपकी टिश्यू रिपेयर करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी फैक्टर्स, ठीक है। तो एज अ होल दिस इज अ पिक्चर ऑफ मैक्रोफेज एक्टिवेशन और उनका आगे रोल क्या होता है। Okay, and the other factors or other cells that are involved in chronic inflammation, they are T and B lymphocytes. Antigen activated होते हैं, they are through macrophages and dendritic cells, and they release मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग साइटोकाइन, जो अभी हमने किए हैं, ठीक है। इन मैक्रोफेज को एक्टिवेशन के लिए साइटोकाइन जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर फ्रॉम टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ज्यादातर जो टी लिम्फोसाइट से आ रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज आल्सो प्लाज्मा सेल्स, दे आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स, ठीक है। बी सेल्स जो हैं दे बी सेल्स आगे जाके दे आर कन्वर्टिंग टू द प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। एंड प्लाज्मा सेल्स सेकंड फंक्शन इज दे आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अच्छा बताओ मुझे कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? सारी एंटीबॉडीज जो हैं आपके प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैन यू नेम द एंटीबॉडीज? IgG, IgA, IgM, IgE and IgD. ठीक है, there are 5 antibodies: IgG, IgA, IgM, IgE and IgD. These are the antibodies, ठीक है। और इन एंटीबॉडीज को प्लाज्मा सेल्स बेसिकली आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड द और जो सेल्स हैं द लास्ट देयर इज eosinophils, ठीक है। दे आर फाउंड स्पेशली एट साइट्स ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। रिमेंबर eosinophils दे आर ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन देयर इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन या कोई एलर्जी का कोई आप किसी को एलर्जी है, तो अगर आप उसको सीबीसी करवाएं तो उसमें देयर विल बी इंक्रीज लेवल्स ऑफ eosinophils, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर IgI mediated sites. eosinophils they have highly cationic proteins which are toxic to the parasites, ठीक है। मतलब they are toxic to the parasite तो होंगे तो फौरन से अपने eosinophils रिलीज, ठीक है। थैंक यू। कल मैं आपसे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था मैक्रोफेज एक्टिवेशन के पाथवेज पूछूंगी, ठीक है। आपने तो पढ़ के आना है, देन विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट, आगे फिर हम जाएंगे, ठीक है। Excuse me, ma'am. आप लोगों ने ये वाला जो है ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। मैम जी आपसे एक फेवर चाहिए थी। आप मैम सायरा को कह सकते हैं वो एटलीस्ट 5 मिनट्स हमारी बात सुन ले, हमारी क्लास में आ जाएं। कौन सी क्लास में आएंगे वो? कभी भी, मतलब उन्हें अगर फ्री टाइम मिल जाता तो आ जाएं। अच्छा ठीक है। कुछ शेयर करना है आपने या कुछ पूछना चाहते हैं उनसे? नहीं, मैसेज है तो पूछना मैं था। दे सकती हूँ उनको, फिर वो आपको अनाउंस कर देंगे। क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा। अच्छा क्वेश्चन है काफी ज्यादा, um, तो फिर क्लास होगी या चले ठीक है मैं बात कर लूंगी उनसे अगर पॉसिबल हुआ, ठीक है, आपका मैसेज दे दूंगी। थैंक यू। थैंक यू।